हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। Indian as a foreign policy. There is the most important chapter arrive here, but the first point is most important also, the basic objective and principles of foreign policy. What do you mean to basic objectives? And the next is the principle of foreign policy. There are principle. There is a preservation of the national interest, achievement of the world peace, disarmament and the independence of Afro-Asian nation has been two important objectives of Indian as a foreign policy. And these objectives are sure to be achieved through their some principle by is a Panchsheel, a non-agreement, anti-colonialism, anti-imperialism and anti-racialism and the strengthness in the UNA. It would be is be fightings of the expanding this principle. There is a most important principle arrived there here, a Panchsheel, non-agreement, and the anti-colonialism, anti-imperialism, anti-racialism. There is the most important here. The first point arrive here, a Panchsheel. What do you mean to hear a Panchsheel here? The Nehru was a belief in the world peace. He has understood the linkage between the peace for development and the survival of mankind. He has seen the destruction causing by the two world war and therefore realized that for the progress of a nation a long spell of peace was needed. In its absence of social and economical priorities relating to the development tend to get a push to be a background. The protection of the nuclear weapon is a strengthness, is a Nehru, is a faith in the peacefully philosophy and even more. Hender gave to the is the utmost of important to the world peace in his policy planning. India has a desire peaceful and friendly relation with all the countries. A particle there are big powers and then the hood as a nation will the signing and the agreement with their China on April 28, 1954. India advocate is arranged to be five, guiding a principle known as the Panchsheel to be a conduct of the bilateral is a relation. It includes the following pencil here. There is the most important pencil is a point here. The first, mutual respect for the each other's and territorial integrated and sovereignty, and the mutual non-aggressions. And third here, mutual non-interference in the each other as an internal affair. And fourth here, equality and mutual benefit. And the fifth here, peaceful coexistence. There is a most important pencil is a principle here. The pencil agreement is include the best of principle peacefully coexistence with their brotherhoods. It is on a important component of Indian and foreign policy. The one most important here a non-agreement. There is the foreign policy of India. There is a non-agreement. There is the most important here. The non-agreement has been regarded as a most important feature of Indian as a foreign policy. Non-agreement aim to be maintained on national and independent in a foreign affair by not joining any military alliance forced by the USA as a Soviet unit in the aftermath of the Second World War. There is a non-agreement was a neither neutralized and nor is a non-violent, nor isolationism. It is was a dynamic concept which meant not committing to any militarist bloc but taking on an independent stand on international issue according to the merit of each case. The policy of non-agreement won many supporters in the developing countries as it is provided an opportunity to them for protecting their sovereignty as also returning is there is a freedom of their action during to the tensions are called war period. India is a play an important role in a foreign to the non-agreement movement. Their name, non-agreement movement, their name, the formation of the Nehru. The concept of NAM emerged through the gradually process. Nehru took their invented to the convence there is a Asian Relation Conference in New Delhi in 1947. Later on, the conference of 29 countries of Asia and Africa was held at Bangkok, Indonesia in 1955. This was the first gatherings
of its a kind which is pledged to be work together for a colonial liberation, peace and cultural, economics and political cooperation. The Bandungs of the Baghdad and the 1961 were the first NAM conference was held was the logically process to the project and alternative to the Cold War bloc is a politics and a creation of newly independent country of their independent and sovereign right. And Cold War was intense or rival to the between the USA and Soviet Union without a fighting a direct war to attract allies in Africa. Asia and Latin America, it is started soon after the Second World War and continued for the 45 years. And these two big countries become a two opposite pole and the known as the East and West. The world politics revolved around of these two poles. Thus, their world become a bipolar. There is a two poles here. This is called to the bipolar. There is a Soviet Union and USA. That is called to the bipolar. Among there is a non-agreement, there is a Nehru had involved a special relationship with the President Tito of their Yugoslavia and the Nazar of Egypt. And these three are regarded as the founding is the fathers of the non-agreement movement. That is the most important here. They are father of the non-agreement movement. The non-agreement movement was a group of the newly independent state who refused to accept the decade of the former is a colonial master and decided to act according to their own judgment on issue of international concern. There is a non-agreement movement is anti-imperialist of in approach. India as a prime architect of non-agreement and as one of the leading members of the non-agreement movement has taken as an active part in its growth. There is the most important. The non-agreement movement is a providing all member states, regardless of size and importance, an opportunity to the participate in a global decision making and world politics. India is a host to 7th is a NAM is a summit at New Delhi in 1983. India hoped the NAM took up their case of development and discriminant and is a Palestine is a question. There is the most important here. The since the NAM was a product of the Cold War, a scenario and their bipolar world. Many scholars have questioned the relevance of the NAM after end of the Cold War and demise of the Soviet Union. However, even in the present scenario, the NAM has a significant role of play. The first with the disintegrations of Soviet Union, the world faced threat from a unipolar world. The NAM can act as a check against USA dominance. Secondly, the developing North and developing South world are divided over several economical issues. The NAM remain a very relevant is a form the third world war country engage the developed is a nation and productivity dialogues. Moreover, the NAM can prove to be a powerful instrument for a South and South cooperation. Such as a thing is essentially if the third world country are increasing their beginnings of power, vice versa, there is a developed world. India continue to take active part in a non-elegant is a movement even after the end of Cold War. Finally, the developing countries united under to the form of NAM have to fight from the reform UNA and change it is according to the requirement of 21st century. The next year, anti-imperialism and anti-racial, anti-colonialism. There is the most important here, anti-imperialism, anti-racial and anti-colonialism. India has is opposed of colonialism and racialism. There is the most important. India opposes to colonialism and racialism. Whenever any injustice happened, India arises here a voice. For instance, is a favor of Indonesia nationality and fighting to the Dutch colonialism in 1947 against South Africa illegal occupation of the Namibia and its influence is apparent to the policy of South Africa. India is fully supported
inclusion of communist China in a United Nation. That is the most important here. The next here is the most important strengthening of UNA. That is, UNA is the most important strengthening here. India has a way view UNA as a vehicles for a space of from a peacefully change in the world politics. Apart from this, India has away expected UNA to the actively is involved country to the moderate their difference through the text of negotiations. And further, India has advocate active role for the UNA is development effort of third world countries. India has is a pledged for a common united front of a third world country in the UNA. It is a belief that is a non-agreement world by which 12 of their massive number could be play a constructive and meaningful role in the UNA by stopping the superpowers from using this world body their own design. As earlier as 1950, India is linked to the reduction of agreement with a large global of development here. The UNA has a fact is a play a key role in a preservation of world peace by helping in the is a decolonization process. There is the most important here, the helping in the decolonization process by providing humanitarian and developmental assistance and through is a peacekeeping. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण यानी विदेश नीति। देखिए ये चैप्टर हमारा विदेश नीति जो है कई मानने में इम्पोर्टेंट है। अगर जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इसमें बहुत अच्छी समझ है। कहते हैं विदेश नीति के मूल्य उद्देश्य और सिद्धांत क्या है। विदेश नीतियों के उद्देश्य और सिद्धांत जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो। कहते हैं राष्ट्रीय हितों का ध्यान और विश्व शांति की प्राप्ति, निःशस्त्रीकरण और अफ्रीका एशियाई देशों की स्वतंत्रता आदि भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य रहे हैं। यानी भारत सदैव ही जो है विश्व शांति का वकालत करता है। यानी भारत सदैव ही जो है शांति का ही दूत के रूप में अपने आप को विश्व के समक्ष रिप्रेजेंट कर रहा है। इन उद्देश्यों की पूर्ति कुछ सिद्धांतों के माध्यम से की जा सकती है, जैसे कि पंचशील। पंचशील सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रक्रिया थी जो कि भारत अपनाया था। उसके बाद भारत ने जो है गुट निरपेक्षता को प्रायोरिटी दी, क्योंकि गुट निरपेक्षता में ये बात सम्मिलित थी कि वो किसी भी देश में स्वतंत्र जो है सम्मिलित नहीं होगा, वो अपने ही स्वतंत्र हुए राज्यों के साथ जो है आगे बढ़ेगा। औपनिवेशिक विरोधी यानी औपनिवेश करने का जो विरोधी है उसके भी जो है इसके रिगार्डिंग भी इसने कार्य किया। साम्राज्यवाद या विरोधी यानी साम्राज्यवाद के सदैव विरोधी रहा। रंग भेद विरोधी की नीतियों सहित संयुक्त राज्य संघ की मजबूत करना भारत के सबसे विदेश नीति में से एक माना जा सकता है। इन सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कहाँ परिवर्तित होगा ये हम अभी देखेंगे और समझेंगे। यानी भारत सदैव ही विदेश नीतियों का जो है मजबूती से पालन किया है और इसको फ्यूचर में भी करता रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा पंचशील क्या है और पंचशील में हमें क्या देखने को मिल सकता है। हम अब आ गए हैं पंचशील के ऊपर। देखिए पंचशील क्या है। पंचशील आपने कई जगहों पे सुना होगा, लेकिन पंचशील जो है कुछ समझौता है जो देशों के साथ की गई थी। कहते हैं नेहरू विश्व शांति के पक्षधर थे और सदैव नेहरू यही चाहते थे कि विश्व जो है शांति से अपना जीवन यापन करे, भाईचारे के साथ अपना जीवन को निभाए। उन्होंने विकास के लिए शांति और मानव जाति के अस्तित्व के बीच की कड़ी को समझा। वो 2 विश्व युद्धों के कारण हुए विनाश को देख चुके थे और जानते थे कि एक देश की प्रगति के लिए दृढ़ शांति काल की आवश्यकता होती है। क्योंकि नेहरू जी आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों में ही अपना जो है महत्वपूर्ण जो है योगदान भी दिए थे और देखे भी थे और उनके समक्ष ये सारे काल आए भी थे। बिना शांति के विकास संबंधी सामाजिक और आर्थिक जो है प्राथमिकता पीछे धकेल दी जाती है। ये तो बहुत जनरल सी बात है, ये तो आपको भी पता है कि शांति के विकास के बिना कोई भी चीज़ को आगे लेके बढ़ना संभव नहीं है। कहते हैं परमाणु हथियारों के उत्पादन के कारण नेहरू की शांति के दर्शन का विश्वास और अधिक बढ़ गया, क्योंकि परमाणु हथियार का बनने का अर्थ था कि विश्व जो है एक नई खतरे की ओर बढ़ रहा है और इसका जो है परिणाम आपने देखा भी होगा। हिरोशिमा नागासाकी पे जो है इसका जो है बहुत बड़ा विनाश भी हुआ था। इसलिए उन्होंने अपने
निर्धारण में विश्व शांति को सबसे अधिक महत्व दिया। यानी नेहरू जी देखा जाए तो उन्होंने शांति के पक्षधर थे और वो सदैव ही जो है मैत्रीपूर्ण अपना जीवन यापन करना चाहते थे और देश में शांति की जो है बहाल करना चाहते थे। भारत के सभी देशों के साथ विशेष रूप से बड़े और पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध की इच्छा रही है और इंडिया सदैव यही प्रयत्न करता भी रहता है। 28 अप्रैल 1954 को चीन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर करने के समय भारत ने जो है आपसी संबंध के लिए पंचशील के सिद्धांत को पालन की वकालत किया। यानी पंचशील जो सिद्धांत है वो भारत और चीन के बीच एक समझौता है जो 28 अप्रैल 1954 को की गई थी, जिसमें 5 बातों को जो है महत्वता दी गई थी। वो 5 बातें क्या है देखते हैं। उस 5 बातों के अंतर्गत सिद्धांत जो थे वो थे एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। यानी एक दूसरे की क्षेत्रीय जो भी अखंडता है, जो भी क्षेत्र आता है उसका सम्मान करना और संप्रभुता की ओर सदैव बढ़ना। परंपरा अनाक्रमण करना, यानी आक्रमण एक दूसरे पे नहीं करना। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, यानी कोई भी देश में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है दूसरा देश को जो हस्तक्षेप करने की जो है अधिकार नहीं दिया गया था। ये तीसरी बात थी। समानताएं और पारंपरिक हित, समानताएं सभी को मिले और पारंपरिक हित रहे, ये भी पंचशील के मुख्य सिद्धांतों में से एक था। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये भी जो है 5वां रूल के अंतर्गत आता है कि शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व। दोस्तों अगर पंचशील के सिद्धांत आता है तो आपको ये 5 जो लाइन है, 5 जो शब्द दिए गए हैं उसको एग्जाम में लिखना है। यही पंचशील की 5 जो है रूल रेगुलेशन है। पंचशील जो है समझौता पड़ोसी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण एवं सह अस्तित्व के सिद्धांत पर सबसे अच्छा निरूपण है और यह भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण घटक भी माना जाता है। यानी पंचशील का जो है अपना विशेष स्थान है जो हर एक पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए अग्रसर है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है गुट निरपेक्षता, यानी नॉन एग्रीमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुट निरपेक्षता, जिसको भारत ने अपनाया था। कहते हैं गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्षता का उद्देश्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा बनाए गए किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर विदेशी मामलों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता को कायम रखना, यही गुट निरपेक्ष का उद्देश्य था। अगर आपको आ जाता है एग्जाम में गुट निरपेक्ष किसे कहते हैं तो आपको सिर्फ इतना सा ही वर्ड याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्षता का उद्देश्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा बनाए गए किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर अपना अलग से ही स्वतंत्रता कायम रखना, यही गुट निरपेक्ष का उद्देश्य था और यही गुट निरपेक्ष का परिभाषा भी कहा जा सकता है। गुट निरपेक्ष न तो उदासीन थी और न ही तटस्थ था और न ही स्वयं को पृथक रखना था। ठीक है, गुट निरपेक्ष में उस सभी देशों को सम्मिलित किया गया जो उस समय आज़ाद हुए थे और इन्होंने न तो अमेरिका खेमा को अपनाया न सोवियत यूनियन खेमा को अपनाया। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखने में ही अपना भलाई समझा। कहते हैं यह एक शक्तिशाली परिकल्पना थी जिसमें किसी भी सैन्य गुट से कोई वचनबद्धता नहीं थी। यानी देखा जाए तो इन्होंने किसी भी गुट में सम्मिलित न होने की वचनबद्धता को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। यानी न तो अमेरिका गुट में शामिल हुए और न ही ये सोवियत यूनियन में सम्मिलित हुए। अतुल यह प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उनके गुण दोष के आधार पर जो है स्वतंत्रता रखना था। गुट निरपेक्षता की नीति को विकासशील देशों ने समर्थन भी दिया क्योंकि इससे उन देशों को जो है अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की अवसर भी मिल गया और शीत युद्ध के दौरान अपनी गतिविधियों को संचालित करने की स्वतंत्रता भी हो गई। गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत बनाने में भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी इसमें भारत का जो है बहुत ही विशेष योगदान था और ये जो थे नेहरू के जो है कूटनीति और जो है अच्छे विचारधाराओं के कारण ही गुट निरपेक्ष का जो है उदय हुआ। इस परिकल्पना का विकास धीरे धीरे हुआ और 1947 में नई दिल्ली में एशियाई संबंधों के सम्मेलन को बुलाकर नेहरू ने इसकी पहल भी की। इसके बाद 1955 में एशिया और अफ्रीका के जो है 29 देशों का सम्मेलन बांडुंग जो था इंडोनेशिया में हुआ। यह अपने प्रकार का पहला सम्मेलन था जिसमें शांति, उपनिवेशवाद से मुक्त और सांस्कृतिक, आर्थिक
और राजनीतिक सहयोग की दिशा में साथ साथ कार्य करने की शपथ ली गई थी। 1961 में जो है बेल्ग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ, जिसने शीत युद्ध की गुट रणनीति का विकल्प प्रस्तुत किया तथा यह नव स्वतंत्र देशों को अपने स्वतंत्र और संप्रभु अधिकारों का प्रयोग का साहस दिया। यानी जो देश उस समय स्वतंत्र हुए थे उनको काफ़ी साहस दिया। तो ये गुटनिरपेक्ष की सबसे पहली नीति थी। यह आंदोलन शीत युद्ध के संदर्भ में एक विकल्प था, जिसे नव स्वतंत्र देशों को अपनी स्वतंत्रता एवं संप्रभुता अधिकारों के प्रयोग करने का अवसर मिल गया। यानी हर देश अपना पैरों पे खड़ा होना चाहता था, किसी भी एक खेमे में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उस खेमे में जाने का मतलब था गुलाम, और वो गुलाम दोबारा नहीं बनना चाहते थे। इसलिए सभी देशों ने जो स्वतंत्र हुए थे वो गुटनिरपेक्ष को ही अपनाया। न वो अमेरिका खेमा में गए न सोवियत खेमा में गए, और वो स्वयं ही अपने आप को स्वतंत्र रखे, और ये बहुत बड़ी बात इनके लिए था। अमेरिका और सोवियत संघ के जो बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता के शीत युद्ध था, जिसमें आमने सामने युद्ध लड़े बिना वो दोनों अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों को आकर्षित करने में लगे हुए थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद आरंभ हुआ था और 45 वर्ष तक चलता रहा। आपको अगर याद होगा तो जो हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 18 तक चला था, और सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुई थी जो है 1939 से लेकर 1945 तक हुई थी, और इसी के बाद 45 से लेकर 1991 तक जो है शीत युद्ध की दौड़ चली। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और कहते हैं कि इसमें दो खेमा थी, अमेरिका था और सोवियत यूनियन था, यानी यूएसएसआर था। दोनों का ही एक ही महत्वाकांक्षा था कि सभी देशों को अपने खेमे में लाना, और सभी देशों को आकर्षित करने के लिए ये दोनों जो है विचारों का युद्ध कर रही थी, ठीक है, और बातों का युद्ध हो रहा था, ठीक है, मीडिया का युद्ध हो रहा था। तो इसे ही शीत युद्ध का नाम दिया गया, जो कि बहुत ज़रूरी भी था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद प्रारंभ हुआ था और 45 वर्ष तक चलता रहा, और ये दोनों राष्ट्र दो विपरीत ध्रुव बन गए थे और पूर्व तथा पश्चिम के नाम से जाने जाते थे। उस समय जो था दोनों खेमों को पूर्व और पश्चिम के नाम से जाना जाता था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। विश्व की राजनीति इन दोनों ध्रुवों के चारों तरफ घूमती थी, और इस प्रकार विश्व जो था दो ध्रुवीय बन गया था। गुटनिरपेक्ष में नेहरू ने युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टिटो और मिस्र के नसर के जो है विशेष संबंधों का विकास किया। इन्हीं तीनों के गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है जनक भी माना जाता है। निरपेक्ष आंदोलन नव स्वतंत्र राष्ट्रों के वह समूह था जिसने अपने पूर्व उपनिवेशों, स्वामियों और तनाशाइयों को जो है अस्वीकार कर दिया गया, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने का निश्चय भी किया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वभाव से साम्राज्यवाद का विरोधी थे, और गुटनिरपेक्ष मुख्य शिल्पी होने और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अग्रणी सदस्य होने के कारण भारत ने इसके विकास में एक सक्रिय भूमिका भी निभाई। यानी भारत का जो है गुटनिरपेक्ष में एक महत्वपूर्ण योगदान था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन सभी सदस्य राष्ट्र को उनके आकार और महत्व के आधार के बिना ही उन्हें विश्व राजनीतिक और विश्व संबंधी निर्णय लेने के अवसर प्रदान करते थे। भारत ने 1993 में नई दिल्ली में 7वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक की मेजबानी की। भारत ने आशा जताई कि यह आंदोलन विकास, निःशस्त्रीकरण और जो है फिलिस्तीनी के प्रश्न पर काम करेगा। यह आंदोलन क्योंकि शीत युद्ध और जो था ध्रुवीय यानी दो ध्रुवीय विश्व का परिणाम था, यानी शीत युद्ध और ध्रुवीय का परिणाम था। अंत बहुत से विद्वान शीत युद्ध और सोवियत संघ विभाजन के बाद इसकी परिसंगतता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहली यह कि सोवियत संघ विभाजन के पश्चात विश्व को एक जो था ध्रुवीय विश्व की खतरा है वो टल गया था। यह आंदोलन अफ्रीका के जो है प्रभुत्व पर अंकुश लगाने का काम भी करता है। दूसरे, विकसित उत्तर और विकासशील दक्षिण दुनिया आर्थिक मामलों में बटी हुई नजर आ रही है। यह आंदोलन तीसरे विश्व युद्ध के देशों को उनके विचार व्यक्त करने का एक सही मंच प्रस्तुत कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह आंदोलन दक्षिण के बीच सहयोग का एक सशक्त साधन बन गया है। अंत यदि तीसरे विश्व युद्ध के राष्ट्र विकसित देशों की तुलना में जो है अपनी प्रत्याशी बढ़ाना चाहते हैं, यानी तीसरी युद्ध जो हो रही है अभी देख भी आप सकते हो, ठीक है, तो कहते हैं यह आंदोलन अति आवश्यक भी था, और शीत युद्ध के अंत के बाद भी भारत इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।
अंत में इस आंदोलन के अंतर्गत आने वाली विकासशील देशों को 21वीं सदी की आवश्यकता अनुसार संयुक्त राष्ट्र में परिवर्तन के लिए संघर्षशील होना ही पड़ेगा। हमारा जो अगला टॉपिक आया है साम्राज्यवाद, रंगभेद और उपनिवेशवाद विरोधी। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको भारत ने सदैव ही इसका जो है विरोध किया है। भारत सदैव ही उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध किया है। जब कभी कोई अन्याय हुआ है तो भारत ने अपनी आवाज़ जरूर उठाई है। उदाहरण के लिए 1947 में डच उपनिवेशवाद के विरोध, इंडोनेशिया की राष्ट्रीय ताकत की लड़ाई और दक्षिण अफ्रीका द्वारा नमीबिया पर जो है अवैध कब्जा और दक्षिण अफ्रीका के बदनाम रंगभेद नीति का भारत ने सदैव ही विरोध किया है। कहते हैं साम्यवादी चीन को जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनवाने का समर्थन भी किया है। यानी भारत देखा जाए तो सदैव ही साम्राज्यवाद, रंगभेद और उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है और इसीलिए भारत को जो है सभी देशों से अलग समझा जाता है। उसके पश्चात है संयुक्त राष्ट्र का सशक्तिकरण। देखिए संयुक्त राष्ट्र का सशक्तिकरण भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत ने सदैव ही जो है विश्व राजनीति में शांति और शांतिपूर्ण परिवर्तन का एक साधन माना है। इसके अतिरिक्त भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ से यही आशा जताती है कि वह वार्ताओं और प्रत्याशों द्वारा भेदों को कम करने के लिए देशों को सम्मिलित करने में सक्रिय भूमिका निभाए। भारत ने जो है तृतीय विश्व युद्ध के देशों के विकास में संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भूमिका की वकालत भी की है। भारत का विश्वास है कि गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण वे संयुक्त राष्ट्र में एक समर्थक और रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं, जिससे कि महाशक्तियों के ऊपर संसार की अपनी इच्छा अनुसार आकार देने पर अंकुश लगा सकता है। 1950 के आरंभ में ही भारत ने निःशस्त्रीकरण को विकास के विधि लक्ष्य से जुड़ा हुआ भी था। भारत ने सदैव ही निःशस्त्रीकरण का ही विचारधारा उठाया था और नेहरू जो थे सबसे अच्छा विचारक में से थे, क्योंकि नेहरू हमेशा ही निःशस्त्रीकरण को जो है प्रोत्साहित करते थे और उनका विचार था कि हमें शांति में जीवन यापन करना चाहिए। देयर इज important also the important point here, a major concern in the Indian as a foreign policy in the post Cold War period. There is the most important, the Indian as a foreign policy in the post Cold War period. The end of Cold War in 1989 was both about the significant change in the international scenes and hence a new policy problem for a various state in the developing world, including India. The new situation is made by great insecurity of complexity. For India is a discrimination of the Soviet Union has a means of uncertainty of several except by supply of weapon system, supply of spare parts and diplomatic support on Kashmir and other is a political status issue in and outside the United Nations, and as a counter the bait to the USA in the South Asia. During the last one decade and a half of international politics has undergone some major changes. The Cold War has ended, the world has become a unipolar. A number of states have declared it is a Cold War. A military bloc has lost their significance and some such as bloc have dissolved and new regional economic blocs are shaping up, and globalization has given rise to a new set of problems such as terrorism, money launderings and proliferations of weapons, global warming, etc. These problems are not endemic to any region but affect all the countries to some extent or other. This has forced many nation states which were hetero to the enemy to the cooperate with each other to solve the problem which are universal in the nature. In this change international scenario, it has become imperative for a UNA to restructure and reform itself if it is to effectively respond to the emerging challenge. There is the most important. There is emerging of challenge. Military in Kashmir has emerged as the foremost challenge to our
foreign policy. Pakistan and the Western countries blame India for violating human rights and denial of right to be self-determination. Gradually, India brought a situation under control. Because of the Kashmir, Egypt of India is as a relation with the Pakistan sharply integrated. India is access to Pakistan of fanning travel through their crossed border terrorism in a Kashmir and other part of country. India is a conducted nuclear weapon test in 1998 is followed by Pakistan as tests. Pakistan the story to the further is a missives by the securities as sending its a soldier into the Kargil in order to cut off the Kashmir Valley from the rest of India. The India handled it to the challenge forming on effective. Now emerging Pakistan as a contractives and is a composite dialogues per se remain a challenge to India as a foreign policy because there is a great deal of push from the United States. Spread of terrorism to the corner behind is a Kashmir is a challenge as well as a opportunity for our foreign policy. Nowadays, India is interesting in a foreign anti-terrorism coalition with many countries as a possible. That is the most important. Keeping so old is a friendship and looking for a new friendship in another challenge for our foreign policy. After the Cold War is ended, for example, India is interesting in a strengthening of the relation without damaging in relation and the relation with their Arab countries. Similarly, India's foreign policy is a tackling is a new task like a deepening is economic and security cooperation with the United States will at the same time opposing the unilateral action against the Iraq, Yugoslavia. Finally, India is realizing the growing importance of economical aspect of foreign policy. And it is a try to establish a new basis for its relation with the neighborhood and countries in South Asia, China and Southeast Asia countries. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है जिसमें हम भारत की विदेश नीतियों के जो है विषय में चर्चा कर रहे हैं जिसका दूसरा पॉइंट यही बताता है कि शीत युद्ध काल के बाद भारत की विदेश नीतियों के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से थे। यानी जब शीत युद्ध के काल के बाद जब शीत युद्ध खत्म हो गया था तो भारत की विदेश नीतियों के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से थे। कहते हैं 1989 में शीत युद्ध के अंत के बाद देखिए यहाँ पर 1989 दे रखा है शीत युद्ध के अंत। देखिए ये तो जो दिया गया है 1989 वो डिक्लेयर किया गया था लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो 1991 में जो था बिल्कुल ही खत्म हो गया था जब सोवियत यूनियन भंग हो गई थी। यानी जो था बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी उस समय से जो है इसको वास्तविकता में माना गया। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय परिषद में महत्वपूर्ण बदलाव आए और इस प्रकार विकासशील देशों के लिए नीति संबंधी नई समस्याएं आई। यानी कोई भी देश अगर बनता है कोई भी चीज़ बनाया जाता है तो उसमें बहुत सी समस्याएं आती है, ये आपको भी पता है। जैसे मुझे हर एक बच्चा जो है कमेंट करते हैं कि सर आपका देखता हूँ समझ आता है लेकिन दोबारा मैं रिसर्च करता हूँ तो नहीं आता है। तो मैं उन सभी बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव करने में ही आपकी भलाई होती है। और बहुत से बच्चे ये भी कंप्लेंट करते हैं कि जब भी मैं रिसर्च करता हूँ दूसरे के वीडियो ही आते हैं। तो यही बात तो मैं भी आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि तभी आप मेरे वीडियो को फ़ायदा उठा सकते हो जब चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे। और दूसरी बात ये भी रहता है कि हमेशा ये भी कहता हूँ मैं कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प भी करना है। तो ये बातें बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं जब तक एक दूसरे का सहयोग नहीं दिया जाए तब तक जो है कोई भी नीति या कोई भी रूल रेगुलेशन सही से नहीं चल सकता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे कोई युद्ध का हो, चाहे राजनीतिक का हो। हर जगह जो है सभी की सहयोग की आवश्यकता होती है क्योंकि बिना सहयोग से कुछ भी नहीं चल सकता है। तो यही बात यहाँ पर भी बताया गया कि इस प्रकार विकासशील देशों के लिए नीति संबंधी नई समस्या खड़ी कर दी क्योंकि नई चीज़ बनाई गई, नई समस्या तो आना स्वाभाविक बात ही थी। यह नई स्थिति एक बड़ी ही जो कहते हैं अनिश्चितता और जटिलता का परिणाम ही था। भारत के जो लिए संबंधित संघ के जो है विघटन से कई अनिश्चितता उत्पन्न कर दी। यानी सोवियत संघ के विघटन के कारण कई बातें जो थी भारत के समक्ष जो है प्रस्तुत हो गई, जैसे कि युद्ध सामग्री की आपूर्ति
स्पेयर पार्ट की आपूर्ति, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर और बाहर कश्मीर और अन्य राजनीतिक मामलों में राजनीतिक समर्थन, और जो है दक्षिण एशिया में अमेरिका का विरोध पक्ष। तो ये सारी बातें जो थी भारत के लिए एक अनिश्चितता का दौर उत्पन्न कर दी। पिछले 1.5 दशक में जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए और शीत युद्ध के अंत हो चुका है और विश्व एक ध्रुवीय बन गई थी। कई राष्ट्र विघटित भी हो चुकी थी और शीत युद्ध जो है सैन्य गुटों ने अपनी महत्ता खो दी थी। यानी शीत युद्ध की जो है सैन्य गुट में जो बिल्कुल ही महत्ता खत्म हो गई थी। इस प्रकार के गुट जो थे भंग हो चुके थे और नए क्षेत्रीय आर्थिक गुट बन रहे थे। वैश्वीकरण ने नई समस्याओं को जन्म दे दिया और जैसे कि आतंकवाद, मृदा समृद्धि, युद्ध शास्त्रों की संख्या में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग आदि। कहते हैं जैसे ही दो ध्रुवीय का जो है अंत हुआ, बहुत मुद्दे जो थे सामने खड़े आ गए, जिसमें से आतंकवाद जो था सबसे बड़ी मुद्दा और सबसे जटिल मुद्दाओं में से एक मुद्दा था। ये सभी समस्याएं किसी क्षेत्र विशेष को नहीं थी, बल्कि सभी देशों को किसी न किसी सीमा तक प्रभावित जरूर करता था। यानी देखा जाए तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बोला था वो सिर्फ एक देश की समस्या नहीं हो सकती है। यानी आतंकवाद, मृदा समृद्धि, युद्ध शस्त्रों की संख्या में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो थी विश्वव्यापी थी और हर देश जो था इससे जो दो चार हाथ कर रहा था और ये बहुत बड़ी विडंबना थी सभी देशों के लिए। इसी कारण वे देश जो अभी तक समस्याओं का हल करने में सहयोग देने को तैयार नहीं थे और स्वभाव से एक ही प्रकृति के थे, वो भी सहयोग के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि समस्या बहुत जटिल थी और सभी देशों को समर्थन प्राप्त होना भी स्वाभाविक बात थी। इस परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में संयुक्त के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह इन चुनौतियों का प्रभावकारी उत्तर देने के लिए स्वयं को परिवर्तन कर दे। ये बहुत जरूरी बात थी। यहाँ पर हमारी विदेश नीतियों के लिए कश्मीर में आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती थी। हमारे देश के लिए विदेश नीतियों के अंतर्गत कश्मीर जो है आज भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रखी है और इसमें खड़ी जो कर रही है आतंकवाद ही कर रही है और आतंकवाद जो है सदैव चुनौती भारत को देती ही रहती है। पाकिस्तान और पश्चिमी देशों ने भारत पर मानवाधिकार के हनन और आत्मनिर्णय के अधिकारों का अनदेखी करने का आरोप सदैव लगाता ही रहा है, परंतु धीरे धीरे भारत इस स्थिति को नियंत्रण में ला रहा है। कश्मीर विवाद के कारण भारत पाक संबंध तेजी से बिगड़ते चले जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को जो है सीमा पर आतंकवाद और देश के अन्य भागों में आतंकवाद फैलाने का जिम्मेवार ठहराया है। यानी भारत ने सदैव ही पाकिस्तान को जो है आतंकवाद की जो है क्रियाकलाप में जो है दोषी पाया है। 1998 में जो है भारत ने परमाणु परीक्षण किए और उसके बाद पाकिस्तान ने भी ऐसे परीक्षण किए। पाकिस्तान ने संदेशपूर्ण रूप से कारगिल में अपने सैनिकों को भेजकर कश्मीरी घाटी को भारत से अलग करने का एक और अनिष्ट कार्य किया। भारत ने इस चुनौती का जो है दृढ़तापूर्वक सामना किया और अब पाकिस्तान को सकारात्मक और सर्वैकता वार्ता द्वारा समझाना भारत की विदेश नीति की एक अहम चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान को समझाना बहुत ही दुर्गम कार्य है, क्योंकि इसके पीछे उसे अमेरिका की शय प्राप्त है। कश्मीर के जो है अतिरिक्त अन्य हिस्सों में भी आतंकवाद को रोकना भी हमारी विदेश नीति के लिए एक अवसर और चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। भारत के अधिकांश देशों के साथ आतंकवाद विरोधी संबंध बनाने में गहरी रुचि है और भारत ने सदैव ही इस आतंकवादी के प्रति जो है अपना रवैया प्रस्तुत किया है और इनका जो रवैया थी हमेशा पॉजिटिव थी। शीत युद्ध के अंत के बाद पुराने मित्रों को कायम रखना और नए मित्र तलाशना भी हमारी विदेश नीति के लिए एक अन्य चुनौती थी। उदाहरण, अरब देश के साथ संबंधों को खराब किए बिना ही भारत इजराइल से अपने संबंध मजबूत करने के इच्छुक है और इसी प्रकार भारत की विदेश नीति का एक कार्य अमेरिका के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाना भी एक इम्पोर्टेंट कार्य में से देखा जा सकता है। परंतु इसके साथ ही वह इराक और यूगोस्लाविया के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई के विरुद्ध है। अंत में भारत अपनी विदेश नीतियों में आर्थिक पक्ष के महत्व को महसूस कर भी रहा है, इसलिए यह अपने पड़ोसी देश चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ संबंधों का एक नया आधार देने के लिए प्रयासरत है। The next our most important topic here, India and United Nations. That is the most important topic. There is a first point here. India has a contribution to UN effort for the peace and discriminant. There is the most important topic arrive here. The United Nations, which is come into the begin on October 24, 1945,
has been the most important international organization since the Second World War, the formal basis for the UN activities in the UN Charter. The UNA has a vital role in the world affair. For more than 50 years, UNA has helped to the manage relation between the state and regulate a broad range of international activities. It has a work to protect the security of people and promote the peace and development. One way in which the UN has contributed to world peace is by taking up the cases of discrimination. India has also contributed in naming to UNA the agreement of efforts. And discriminant is a limitation, reduction, and possible elimination of dangerous, like a nuclear weapon. That is the most important. Since the independent India has a constantly is a pursuit their objectives of global discriminant based on the principle of non-discriminations and given to the destructive capacity of nuclear weapon, India has a way believe that a world free of nuclear weapon would be enhanced to the global security. Thus, the India has a way advocate the highest priorities to be given on nuclear discriminant as a first step toward a general and complete discriminant. There is the most important here, but India has a contribute to the UN significantly on discriminant in the term of idea, resolution, innovative, and the bearings of difference through the action plan. In 1949, India has proposed to the eliminating the use of atomic energy to peacefully purpose and elimination of the nuclear weapon from the national arsenal. In 1950, India suggested the formation of the UN Peace Fund created through the peaceful reduction of arms and directing the amount thus the release toward to development purpose. In 1954, India has advocated the causes for the comprehensive nuclear test ban threatening. India was the first to become a party to the potential test ban treaty in 1963. Hence, India strongly and constant refused to join the treaty. In 1964, India took initially to the pace the items known for is a proliferation of weapon or UN agenda. However, the purpose was defeated by the 1969 carry that the large numbering of countries from going nuclear without firm restriction on the few nuclear weapon country activities. Nuclear non-proliferation threatening, although there is our countries alleged to be opposed to the problem. In 1984, India is launched a six-nation, five-continent-based initiative to along with the Argentina and Greece, Mexico, Sweden, and Tanzania. 4 years later, in a joint declaration issued on the occasion of visit to President Gorbachev of Soviet Union of Prime Minister. The President of Gorbachev is the Soviet Union, the Prime Minister Rajiv Gandhi made a peaceful plea of the elimination of the nuclear weapon. There is the most important. There is a USSR, the President of Gorbachev of Soviet Union. There is a Prime Minister of Rajiv Gandhi made a forcefully pace of the elimination of nuclear weapon. There is the most important point here. The Delhi is a declaration of immigrated the 10 principle of building of nuclear weapon of free world. In 1988, the Rajiv Gandhi proposed on the action plan for the uranium their nuclear weapon free and non-violent world order. The action plan is invocated to the blinding commitment by all the nations of their elimination of the nuclear weapon in stage by 2010. India is also an original signature to be the chemical is a weapon conventions having the signature its on Jan 90 Jan is a 14 1993 and was among their first 65 countries to have ratified their threat. In 1993, the India is sponsored our evolution on their comprehensive test ban along with the USA within the overall framework of advancing to about nuclear disarmament. India was distressed went to the final version of the CTBT and was the rushed through there without consent.
and it is a failed to address the security reason of India, and it is a probably stood against the sterility of function in which the some test use or canal where there is a spotocatted nuclear test were not in way. India as a conduct of nuclear test in 1998 could be a linked to the unfair framework of CTBT. Though many initially Musculador stood India as a test are negative development for discriminant. India is pledged to the continue to the work for irregular and non-discriminatory nuclear discriminant. The next point here is the most important here. India as a participation in a UNA peacekeeping. There is the most important. India as a participation in a UNA is a peacekeeping. India has a history of participation in UNA peacekeeping operation is a long one. India as a contribution has been to describe as a excellent by many political observer in UNA. India as a contribution has been to the knowledge by the member of international communities. The peacekeeping stand for a prevention and contaminant and termination of the hostilities between or within the state through their non-offensive activities of multinational force of soldier and police and civil people sent up to the authorities of United Nations with the consent of the countries concerned. Peacekeeping a nation change in its scope and nature according to the need of conflict situation. India has taken part in a 35 of UNA peacekeeping operation in a 4 continent. It is the most significant contribution has been to peace and stability in Africa and Asia. Presently, India is ranked as the larger troops of contribute to UNA. The saga of India as a role in the UNA peacekeeping began with the establishment of the United Nations as emergency force, means UNEF, in the Gaza Strip and the Sinai in 1956 after Israel war against the Egypt ended. The Congo in Africa benefited of significantly from a troop presence. India has contributed to keep a unit and integrated of that history in the 1960s centuries. After the end of Cold War, India as a contribute to UN peacekeeping is remained significant equally. It is not a more a military person at the request of the United Nations Security Journal of Angola and Cambodia and Somalia, the El Salvador and the Sierra Leone, etc. The many of these countries were victims of chores is causing by the civil war. Non-government machinery is a collapsed was the declaratory of India sent not just troops but police, doctor, engineers and administrators. हमारे समक्ष जो यहाँ पर आया है भारत और संयुक्त राष्ट्र. देखिए भारत और संयुक्त राष्ट्र के साथ क्या संबंध है, दोनों में क्या विशेषताएं हैं, दोनों किस विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं. कहते हैं अगर पहली पॉइंट के अंतर्गत हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र की शांति और निशस्त्रीकरण प्रयासों में भारत का योगदान. देखिए भारत ने सदैव ही इसका वकालत किया है कि वेपन जो किसी भी देश के पास न हो, क्योंकि न्यूक्लियर बम जो होती है कई मायने में खतरनाक होती है और इसका प्रभाव जो हमने देखा भी था हिरोशिमा और नागासाकी पे, ठीक है, जिसने बहुत ही जो है तबाही मचाया था. तो इसलिए भारत ने हमेशा ही निशस्त्रीकरण के प्रयासों में लगा रहा है और ये हर देश को जो है मानने में और मनाने में लगा रहा है. कहते संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से एक था और इसे क्रियाकलाप का जो है औपचारिक आधार संयुक्त राष्ट्र चार्टर था और विश्व के मामले में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका भी थी. 50 से भी अधिक वर्षों से संयुक्त राष्ट्र राज्यों के बीच संबंधों को बनाने और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को नियंत्रण करने में सहायता कर रहा है. संयुक्त राष्ट्र ने नागरिकों की सुरक्षा, शांति और विकास के बढ़ावा देने में योगदान भी दिया है. निशस्त्रीकरण के द्वारा संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शांति की दिशा में भी योगदान दिया है. भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र के निशस्त्रीकरण के प्रयासों में अधिक योगदान दिया है, यानी भारत ने सदैव ही निशस्त्रीकरण के लिए वकालत किया है. निशस्त्रीकरण खतरनाक हथियार पर अंकुश लगाना होता है. देखिए निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है
हथियार के बिना या हथियारों पर अंकुश लगाना। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि निशस्त्रीकरण किसे कहते हैं, तो आप इतना भी लिख दो कि इससे जो है हथियारों पर अंकुश लगाने को ही निशस्त्रीकरण कहते हैं। ठीक है, और इसका भारत जो है सबसे अधिक पक्षधर माना गया है। उनमें एक कमी करना तथा यह संभव विनाश भी करना, ये सब निशस्त्रीकरण के अंतर्गत ही आता है। भारत ने आज़ादी के बाद ये सब विश्व जो है निशस्त्रीकरण के उद्देश्य को पाने के लिए भेदभाव रहित प्रयास किए हैं। परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता को चलते भारत ने सदैव ही यह विश्वास व्यक्त किया है कि परमाणु हथियार से युक्त विश्व की भूमंडलीय सुरक्षा बढ़ेगी। इस प्रकार भारत सदैव ही परमाणु के विनाश और निशस्त्रीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया है तथा उसे संपूर्ण निशस्त्रीकरण की ओर जो है पहला कदम भी माना है। यानी भारत ने सदैव ही इसका जो है निशस्त्रीकरण के लिए अपना जो है सदैव अपना महत्वपूर्ण प्रयास करता ही रहा है और कर भी रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के निशस्त्रीकरण के प्रयासों में विचारों, संक्रमणबद्धता और पहल करने और भेदभाव को समाप्त करने के पक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1948 में भारत ने परमाणु हथियारों को राष्ट्रीय शस्त्र भंडार में कटौती करने और परमाणु ऊर्जा को शांति कार्य में प्रयोग करने का प्रस्ताव सदैव रखा है। 1950 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति कोष बनाने का भी प्रस्ताव रखा था और इसके धन के जो है विनाशकारी हथियारों को कम करने और विकास कार्य के लिए प्रयोग किए जाना भी भारत ने इस प्रस्ताव को रखा था। 1953 में भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध की वकालत भी की थी और 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध समझौता का पहला सदस्य भारत ही था। कहते हैं 1964 में संयुक्त राष्ट्र एजेंडा के आधार पर हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध की पहल भी भारत ने ही की थी। यानी भारत सदैव शांति का ही विचारकों में से एक माना जाता है, परंतु कुछ देशों के द्वारा ये समझौते के अनुसार कुछ हथियारों पर दृढ़तापूर्वक प्रतिबंध न लगाए पाने से इसके उद्देश्य को जो है पूर्ति नहीं हो सकी। यद्यपि हमारे देश ने यथाकथित रूप से इस समस्या का विरोध किया है। 1984 में भारत ने अर्जेंटीना, यूनान, मस्को, स्वीडन और तांजानिया के साथ मिलकर 6 राष्ट्र 5 महाद्वीप शांति उपक्रम का आरंभ भी किया था। 4 वर्ष बाद सोवियत संघ के राष्ट्रपति गुर्बाचोव की भारत यात्रा के दौरान एक संयुक्त घोषणा के तहत राजीव गांधी ने भी परमाणु हथियार के विनाश के लिए अपील की थी। कहते दिल्ली जो है घोषणा में परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के जो है 10 सिद्धांत बनाए भी गए थे। 1988 में राजीव गांधी ने एक कार्य योजना का प्रस्ताव भी रखा था जिसका उद्देश्य विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त और अहिंसात्मक बनाना था। इस प्रस्ताव को जो है तहत सभी राष्ट्रों को 2010 तक विभिन्न चरणों में परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए वचनबद्ध होना था। भारत जैविक हथियारों के सम्मेलन में हस्तक्षेप करने वाला मूल्य सदस्य था और 14 जनवरी 1993 को इस पर हस्ताक्षर पर पुष्टि करने वाले 65 देशों में पहला देश भारत ही था। कहते हैं 1993 में भारत ने परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में अमेरिका के साथ ही संकल्पबद्धता को समर्थन भी दिया। जब व्यापक परीक्षण प्रतिबंध समझौता बिना सर्वसम्मति के जो है सफल हो गया तो भारत इससे बहुत ही आहत हुआ और यह भारत के सुरक्षा प्रयासों के संबंध करने में असफलता भी रहा और इन कारणों से भारत जो था काफ़ी हताश हो गया, क्योंकि भारत चाहता था कि जो परमाणु हथियार है वो सदैव के लिए नष्ट हो जाए और इससे जो है देश को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। इस प्रकार भारत जो है दृढ़तापूर्वक अपने निश्चय पर अडिग रहा। 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण को व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि में न्यायविहीन ढांचों से जोड़ा जा सकता है। यद्यपि कुछ राष्ट्रों ने आरंभ में इसे निशस्त्रीकरण के विपरीत माना। भारत ने बिना भेदभाव के परमाणु निशस्त्रीकरण के संकल्प को दोहराया, लेकिन कहते हैं जब सबके पास हथियार होगा तो भारत का शकल देखता रहेगा सभी को, तो इसलिए भारत ने भी अपने परमाणु परीक्षण करना शुरू कर दिया। पश्चात हमारे समक्ष जो है दूसरा पॉइंट आया है संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में भारत का योगदान। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में भारत ने जो है प्रमुख योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयास में भारत के योगदान का इतिहास बहुत लंबा रहा है। कई राजनीतिक प्रेक्षकों ने भारत के इस योगदान की सराहना भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों द्वारा भारत को इस योगदान को स्वीकार भी किया गया है। शांति कायम करने का अर्थ है बहुराष्ट्रीय सैनिक, पुलिस और आम जनता की शक्ति द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सलाह से किसी भी देश में आंतरिक अथवा अन्य देशों के साथ संघर्ष
को रोकना, कम करना, समाप्त करना होता है। शांति कायम करने वाले देशों की भूमिका संघर्ष और विवादों की स्थिति से अनुरूप माना जाता है। शांति कायम करने वाले इस राष्ट्रों को कार्य क्षेत्र एक विरोधी इसी कारण बदल गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा 4 महाद्वीपों में चलाई जा रही शांति निर्णय की 35 गतिविधियों में भाग भी लिया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान अफ्रीका और एशिया में शांति स्थिरता लाने में है। वर्तमान में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को सबसे अधिक सैन्य शक्ति योगदान देने वाला देशों में माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के योगदान की भूमिका 1956 में तब आरंभ हुई जब इजराइल के मिस्र के साथ युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल की गाजी पट्टी के सिनाम में स्थापित हुई। अफ्रीका ने कांगो को भारतीय सैनिकों की उपस्थिति का लाभ हुआ और 1960 के दशक में एकता और अखंडता कायम रखने में भारत बहुत ही सहायक रहा। शीत युद्ध के बाद भी संयुक्त राष्ट्र में भारत का योगदान बना ही महत्वपूर्ण था और सैनिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के निवेदन पर अंगोला, कंबोडिया, सोमालिया, अल सल्वाडोर और सिएरा आदि में भेजे गए। अनेक देश गृह युद्ध के कारण उत्पन्न अव्यवस्थाओं के शिकार थे और भारत ने न केवल सेना ही भेजी बल्कि पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासक भी भेजे थे। There is the most important our next topic. India has a case for the permanent seat in a Security Council. There is the most important topic here. India case the permanent seat in the Security Council. As you already know, the efficiency of peace and maintenance in the world depend on the effectiveness of the Security Council. But Council has suffered in his regard due it is outdated and changed membership, and presently there is a permanent membership of Security Council in a confined to the USA, Russia, Great Britain, France and China. However, such a composition of Security Council does not be take into account the currently global power configuration, which has a change since the day when they are countries were indicated as the permanent members. Since the India has emerged as a fourth fastest growing economics and also become a leadership, it has provided in all international fora. Its a contribution to be a UNA is a peacekeeping. It's a track record in the exposing their causes of the third world, and that India has a strong case of permanent seat in the Security Council. We are getting support for the many friendly countries. A final decision on the matter is likely to be take some time because it is a complexity. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अगला पॉइंट, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का मामला। देखिए, कहते हैं सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता का जो मामला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व शांति कायम करने की क्षमता सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर निर्भर करती है, परंतु यह सुरक्षा परिषद अपने रूढ़वादी और पुराने सदस्यों के कारण कष्ट में रही है। यानी सदैव ही रूढ़वादियों का विचारधारा को सुरक्षा परिषद ने अपने ऊपर लाद रखा है। कहते हैं वर्तमान में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। कहते हैं इन्हीं के दबाव के कारण सुरक्षा परिषद इस पर फैसला नहीं ले पाती है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अमेरिका के दबदबा, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस और चीन की दबदबा इसको कुछ भी करने से रोकती है, यानी इसको रूढ़वादी बनाती है। परंतु सुरक्षा परिषद के इस गठन का वर्तमान विश्व की शांति संरचना कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि आज विश्व 1945 की तुलना में बिल्कुल ही बदल चुका है। आज विश्व सभी से दो चार हाथ करने के लिए सदैव ही तैयार रहेगा। भारत सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में इसकी नेतृत्व विश्व में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति बनाने के प्रयासों में इसके योगदान और द्वितीय विश्व के लिए इसके योगदान को देखते हुए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का यह एक प्रबल दावेदार के रूप में प्रस्तुत हुआ है और कई मित्र राष्ट्र इसे अपना समर्थन भी दे रहे हैं। और इस मामले की जटिलता के कारण इस पर अंतिम निर्णय लेने में कुछ और समय जरूर लगेगा, लेकिन भारत भी सुरक्षा परिषद का सदस्य बनेगा और ये अपने स्थायी सदस्यता भी प्राप्त करने के लिए सदैव अग्रसर हो रहेगा और ये आने वाला समय में भी आप देख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें हम भारत की नीतियों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किया, समझा और जाना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।
इसमें से दो बातें इंपॉर्टेंट ये है, पहली बात ये होता है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर का सहायता करना है। और दूसरी बात ये होता है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा, अगर आप जब भी कोई टॉपिक ढूंढिएगा तो आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर का टॉपिक नहीं प्राप्त होगा। टॉपिक वो प्राप्त होगा जो पहले यूट्यूब पे मौजूद है। अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर का अगर फ़ायदा उठाना चाहते हो, अगर इसके बातों को समझ में अच्छे से आता है तो आपको जो है इसको सब्सक्राइब करके चैनल रखना ही आपकी बुद्धिमत्ता का परिचालक होगा। इससे ये होगा कि आपको जो है यूट्यूब पे त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो है होम पेज प्राप्त हो जाएगा और इसमें सारे वीडियो जो है वीडियो वाले ऑप्शन में दिखेंगे, जहाँ पर जो वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग है, उसको देखिए और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।